पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी में शामिल गोल्डी बराड के अमेरिका में पकड़े जाने की खबर है और खुफिया सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि आरोपी गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया शहर में डिटेन किया गया है और इंटरनेशनल सोर्स से भारत की खुफिया एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट मिला है। गोल्डी को खुद कनाडा में जान का खतरा बना हुआ है और इसके लिए वो कैलिफोर्निया में राजनीतिक शरण लेने की फिराक में है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली है कि 20 नवंबर को या उसके आसपास की तारीख को कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड को डिटेन किया गया है। हालांकि अब तक कैलिफोर्निया की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी भारत सरकार को नहीं दी गई है। दूसरी ओर से खुफिया विभाग, रिसर्च एंड एनालिस्टिक विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पंजाब इंटेलिजेंस को इस तरह के इनपुट्स जरूर मिले हैं कि कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड को लेकर बड़ी हलचल हुई है और उसे वहां पर लोकेट कर पकड़ा गया है और पेशे से ट्रक ड्राइवर गोल्डी बराड को कनाडा में जबरदस्त जान का खतरा महसूस हो रहा था। आपको बता दें उसके पीछे एक वजह यह भी है कि कनाडा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बड़ी संख्या में फैंस फॉलोइंग मौजूद है और इसके अलावा बम्बीहा गैंग के तमाम बड़े गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई भी गोल्डी बराड के दर्जनों दुश्मनों में शामिल है। तो मैं ਮਲੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੁਭਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। देखो जी, मैं जितों तक मेरी पुछगिछ का सवाल है, पुछगिछ तो जिम्मे पुलिस की होनी चाहिए उवें नहीं हुई क्योंकि कोई गल सामने नहीं आ रही हाल तक। जे पुछगिछ होई हुंदी जिस तरह दोषियों के रिमांड लए जाते हैं, जिस तरह उन्होंने पुछगिछ एजेंसियां करदियां ने, आपां भली भद जानते हैं, पर उस तरह पुछगिछ नहीं हुई। हुण जिवें मेरे केस की ला लीए आपां प्रितपाल ने करी है और प्रितपाल दियां सामने सारियां गल्लां आ गईयां ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਘਮਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ? ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਕਮ ਰੱਖ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਾਂ BMW ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ आऊगा ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की, तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है। एक बार पूरी जानकारी।
हाँ जी, बिल्कुल सही तौर पे कह सकते हैं कि निशा कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर का जो मास्टरमाइंड था और जिसने इस पूरे मर्डर का क्रेडिट भी लिया था, गोल्डी बराड़ को हम कह सकते हैं कि यूएस कैलिफोर्निया में एफबीआई के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। और जैसी अब तक हमें जानकारी आ पा रही है कि डिटेंशन 20 तारीख से पहले हुई थी और उसके बाद ही कि लगातार ही टॉक्स चल रही हैं। और अब हम कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो यूएस के पुलिस है उनसे टॉक चल सके और जो हम कह सकते हैं कि डिपोर्ट का प्रक्रिया उसे स्टार्ट कर सके। पर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगर हम कहें कि कैलिफोर्निया पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक रिलीज नहीं किया गया हमारी जानकारी के अनुसार, पर यह जानकारी जरूर कहीं ना कहीं इंटीमेशन सामने आ चुकी है कि वहां की जो यूएस की पुलिस है उन्होंने इंडियन जो हम कह सकते हैं खुफिया एजेंसी उनसे बातचीत की है और गोल्डी बराड़ को लेके उनसे हम कह सकते हैं कांटेक्ट चल रहा है। पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी है कि देखिए एक लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग गोल्डी बराड़ संभाल रहा था और उसको अगर हम कहें कि हिरासत में लेने से जो एक नेक्सस था यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का, तो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा और उसको लेकर अब हम कह सकते हैं कि पुलिस और ज्यादा तेजी से कार्रवाई कर सकती है। फैमिलीज में अगर हम कहें कि जैसे कि वो खुश हैं कि अभी डिटेन हो चुके हैं, पर अब वो वेट कर रहे हैं कि कब गोल्डी बराड़ को वापस इंडिया डिपोर्ट करके लाया जाएगा और लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसको बिठाकर पूछताछ की जाएगी ताकि असली खुलासे हो सकें कि आखिर ये पूरा मर्डर क्या सिर्फ एक्चुअल में जैसे कि गोल्डी बराड़ बोल रहा था कि बदला था या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ था। कर ली जाए कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में गोल्डी बराड़ को जान का खतरा बना हुआ है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है क्योंकि इसका सीधा सीधा अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग जो है कनाडा में रहती है, जिसकी वजह से जो है जान का खतरा यहाँ पर गोल्डी बराड़ को बना हुआ है। निशा देखो सिद्धू हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ फैन फॉलोइंग है कि देखिए फैन फॉलोइंग के लिए हम बात करें तो आम लोग होते हैं जो फैन फॉलोअर्स बनते हैं, पर असली बात हम कह सकते हैं कि गोल्डी बराड़ को खतरा इस बात से भी था कि जो विरोधी गैंग्स थे उनके के भी जान माने चेहरे वहीं पे थे, चाहे हम बिश्नोई गैंग की बात कर ले या फिर हम सीधे तौर पर बम्बिया गैंग की बात कर ले, उन सबके कई बड़े चेहरे ऑलरेडी वहां पे मौजूद है कनाडा में और उसके ऊपर जैसा है कि लगातार उनको ढूंढने में लगे हुए थे। क्योंकि देखिए एक तरह से दोनों गैंग्स एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रही है कि अपने बड़े बड़े चेहरों को दूसरे जो हम गैंग के बड़े चेहरों को मार के अपना बदला पूरा कर सके। एक तरफ से जहां पे हम कहें कि बिश्नोई गैंग तो एक तरफ से लगा हुआ था बम्बिया ग्रुप के सभी गैंगस्टर्स को मारने, तो वही बम्बिया ग्रुप वापसी भी हम कहते हैं उनके गैंगस्टर्स को टारगेट कर रहा था, तो वही कड़ी हम बोल सकते हैं कि लगातार चल रही थी। तो कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ को खुद को कनाडा में सेफ नहीं मानते हुए उन्होंने खुद को यूएस शिफ्ट किया कि यूएस में शिफ्ट करके वो खुद को कंपैरेटिवली ज्यादा सेफर महसूस करना चाहता था और शायद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इम्यूनिटी की कोशिश भी कर रहा था कि कहीं पॉलिटिकली अगर उसे प्रोटेक्शन मिल सके। पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एफबीआई ने उसे ऑलरेडी हिरासत में लिया है और अब वो अपने लेवल पे पूछताछ और छानबीन करेंगे और अगर उन्हें लगता है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट से उनकी बातचीत चल रही है कि जैसे भी जानकारी है कि अगर ये एक्चुअल में दोषी है तो शायद इसे वापस इंडिया डिपोर्ट किया जाए और एक बार अगर इंडिया डिपोर्ट होता है तो हमारे लिए हमारी पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के लिए रास्ता साफ हो जाएगा कि उसको अरेस्ट करके पंजाब में लाया जाए और सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। वही अमित, तो अगर बात कर लें इसके आपराधिक रिकॉर्ड की तो 16 रिकॉर्ड इस पर दर्ज किए गए हैं, इस पर इसकी तलाश चल रही है 16 से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड्स पर। देखिए 16 से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड्स है, उसमें हम कह सकते हैं जैसे मर्डर, डकैती, अलग अलग हम कह सकते हैं इल्जाम उन पे ऊपर लगाए गए हैं और इसको लेके हम कह सकते हैं पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। अब ये देखिए कि जब गोल्डी बराड़ इंडिया से बाहर भागा था तो उसने फेक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था जिसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पहचान कुछ और बताई थी और वो फेक पासपोर्ट तक हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस ने रिट्रीव कर लिया और उनकी पहचान कर दी और बाकायदा इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसी को इसकी जानकारी भी दी है। तो लगातार आप कह सकते हैं किसी चक्कर में गोल्डी बराड़ भागता फिर रहा था, वो लगातार किसी एक स्टेट में, अगर क्या कनाडा की बात करें तो किसी एक स्टेट में नहीं रुकता था, वो लगातार मूव करता रहता था क्योंकि उसे इसी बात का डर था कि कहीं वो हिरासत में या पकड़ में ना जाए। और वही चीज हम कह सकते हैं कि अब उसका पाप का शायद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसे कोई गलती हुई और वो अब पुलिस के हाथ आ चुका है। एफबीआई ने उसे हिरासत में रखा है, पर जब तक कैलिफोर्निया पुलिस इसकी पुष्टि नहीं करती कि उनके पास वो एक्चुअल में हिरासत में है तब तक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब क्या है कि अनबनी बनी हुई है या फिर हम क्या है कि सवाल बने हुए हैं। पर हम कह सकते हैं कई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हमें देखने बोले। क्या देखिए कि बलतेज पन्नू जो पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया डायरेक्टर है, उन्होंने उनकी तरफ से बकायदा ट्वीट करके बात की गई, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इस पे अगर हम पॉजिटिविटी दिखाई गई है। पर जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक हम ये 100% नहीं कह सकते कि जो गोल्डी बराड़ पकड़ा गया वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर का मास्टरमाइंड या फिर कोई और। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।
तो चलिए सीधा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसे किस तरीके से पकड़ा गया है, एक बार ग्राफिक्स के जरिए। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में बड़ी कामयाबी, गोल्डी बराड के अमेरिका में पकड़े जाने की खबर है। और इसी के साथ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है। मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड। 16 से अधिक आपराधिक मामलों में गोल्डी बराड की तलाश जारी है। कनाडा में गोल्डी बराड को जान का खतरा बना है। कनाडा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बड़ी संख्या में फैंस फॉलोइंग है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको एक बार फिर से समझाते हैं, मूसेवाला हत्याकांड मामले में बड़ी कामयाबी इस वक्त हाथ लगी है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में अभी सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि गोल्डी बराड के अमेरिका में पकड़े जाने की खबर है। मूसेवाला मर्डर केस में मास्टरमाइंड गोल्डी बराड कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है। और इसी के साथ मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड। और 16 से अधिक आपराधिक मामलों में गोल्डी बराड की तलाश चल रही है। कनाडा में गोल्डी बराड को जान का खतरा बना हुआ है। कनाडा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बड़ी संख्या में फैंस फॉलोइंग है।